Hello students, we will discuss about a most important poem. The poem name is Child. You know that this board is divided into part through this line. The first part is stanza 3rd and the second part is stanza 4. Now we will explain line wise meaning, and at the last of this explanation we have to discuss about rhyming scheme and poetic devices. This is why you have to see this video so that you came to know that what the rhyming scheme and poetic device is used for this poem. Let's start. The first line of third stanza is, when did my childhood go? Dear students, you know that this line is repeat again and again in this poem. When word, from when word. When did my childhood? When I lost my childhood, I am able to know the time. It means to say that the time is running in a very fast way, unable to see that time, that passing time. Was it when I found my mind was really mine? Listen again. I found my mind was really mine. After getting grown up, after becoming grown, I came to know different type of things. The things that is relating to knowledge, and I came to know about my mind is mine. It means to say that I know what's the wrong and what's the good, and what's the correct, what's the truth and what's the false, what's the wrong and what's the correct, and what's the black and what's the white. It means to say that my mind is working. At this time, after getting grown up, we did not want to walk the tailing path. In childhood, my parents given a lot instruction, and according to instructions of my parents and older person and adult person, but at this time I am own master. I am own mind. I have own mind. I have own knowledge. I had own way. I am everything in comparison of other person, and as well as we can say that childhood. In childhood, I depend on other. I depend on my parents, big brother and sister and other family members. But this time I am not depend on any person. I depended on myself. This time I am master of my mind here. This is the explanation of the poet here. To use whichever way I choose. Whatever I want, I can do. Whatever I select, I can walk. Whatever I select, the path I can walk. Whatever I want, what I can do. We can do different type of things. We can do according to our own wish. Because at this time I am grown. I become a great person. I become a elderly person. Great person means here I am not depend on other person. In childhood, dependency is depend on other person. But at this time I am not dependent on other person. To use whichever way I choose. Producing thoughts that were not those of other people. Producing thoughts that were not those of other people. I have a lot of thoughts, but that thought is not concern other people. In childhood, their comparison between two things, two important aspects of the life. The first is childhood and the other is adultness. My thoughts is relating to me. My thoughts is my own thoughts. In childhood, my thoughts is not my own. A lot thoughts impose on me by the elderly person. But at this time, I can do what we want. I can think what we want according to on me. My instruction for me. My thoughts for me. My mind for me. My knowledge for me. This is the major differences, because I know that what's the correct and what's the not correct. What's the truth and what's the false. But my own and my alone, was that the day? Was that the day? What's the day? That is I spent, that is happened in childhood. This is the third stanza. Now we will explain line-wise stanza number 4. Last stanza of this poem. Where did my childhood? Dear students,
A major differences, a most important difference has occurred here. The differences is where before three happening stanza start from when. This stanza is start the word of when, but this stanza last stanza from where. मेरा बचपन कब चला गया, हर स्टेंजा इस लाइन से स्टार्ट होती थी, लेकिन ये स्टेंजा है मेरा बचपन कहाँ चला गया. Where did my childhood go? It went to some forgotten place. The poet of this poem childhood said, I think my childhood is gone, went forgotten place. There's some place where we are able to know. That place that is unknown. That is hidden behind the infants, that is hidden behind the childhood. And my childhood go at that place where we are able to go, of that place is unable to know. That's hidden in infant's face. Maybe my childhood hide in infant's face. Maybe my childhood gone in infant's face. That's all I know. And where he go, I know everything. I know about my childhood. I know my adultness. I know my adolescence. I know everything. But my childhood is hide behind infant's face. This is the last stanza's explanation. अब हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो 1 या 2 नंबर की जरूर पूछता है, आपकी एग्जाम में 2 पोएम की स्टैंजा रहेगी, जिसमें से एक आपको सॉल्व करना है. उसके 4 क्वेश्चंस रहेंगे, उन 4 क्वेश्चंस के 4 आंसर रहेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन जनरली होता है कि पोएट के राइटर कौन है, राइमिंग स्कीम कौन है, पोएटिक डिवाइस क्या है. तो 2 या 3 नंबर की हर स्टैंजा में अमूमन ऐसा मिलता है. तो लेट्स सी हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज राइमिंग स्कीम. राइमिंग स्कीम क्या है? यहाँ तो कोई राइमिंग स्कीम ही नहीं दिया है. राइमिंग स्कीम है ही नहीं. कैसे नहीं है? गो को मान लीजिए ए नंबर हमने दिया अल्फाबेट का ए, तो माइंड गो से मिलता नहीं है, चूज से माइंड मिलता नहीं है, पीपल से लोन मिलता नहीं है, और डे से कोई मिलता नहीं. जब एक दूसरे से लाइनें नहीं मिलती है, मैच नहीं करती, तो वो स्कीम हो ही नहीं सकती, वो राइमिंग स्कीम है. तो दिस स्टैंजा थर्ड ऑफ दिस पोएम चाइल्डहुड इज राइम फ्री स्टैंजा. तो इसमें कोई राइम नहीं है. अच्छा, और इन्वर्जन हम यूज कर सकते हैं. अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये इन्वर्जन किस चिड़िया का नाम है. तो आइए देखते हैं इन्वर्जन होता क्या है. इन्वर्जन आई चूज. ठीक है, अब देखिए थर्ड लाइन स्टैंजा, टू यूज विच एवर वे आई चूज. हम लोग जो भी लिखते पढ़ते हैं वो वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ते लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे राइटर ने वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं लिखा. देखिए, टू यूज विच एवर वे आई, अगर देखा जाए तो इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ये मिस्टेक. क्यों? क्योंकि आई चूज बाद में लिखा. ये होना कैसे चाहिए? आई चूज विच एवर वे टू यूज, या विच एवर वे आई यूज टू यूज दिस वे, या आई वॉन्ट टू यूज दिस वे. यानी आई यूज लास्ट में नहीं होगा इंग्लिश ग्रामर. लेकिन ये इंग्लिश ग्रामर में लिटरेचर है, तो लिटरेचर में ऐसा मतलब नहीं कि कुछ भी मना करे, लेकिन एक पोएटिक लाइसेंस होता है जो पोएट को मिलता है वो यूज कर सकते हैं. तो कोई बात नहीं, ये यूज करें, हमें इससे क्या मतलब, लेकिन इसे कहते क्या है? जब कोई पोएट राइटर ऐसे पोएटिक डिवाइसेस को यूज करता है, ऐसे पोएटिक लाइसेंस को यूज करता है, उसे हम इन्वर्जन कहते हैं. यानी जो जिस सीक्वेंस में होना चाहिए, जो जिस सेंटेंस में होना चाहिए, उस सेंटेंस में उस सीक्वेंस में न रख के आगे पीछे रख दिया जाए ना, टू ब्रेक द रूल्स ऑफ ग्रामर, तो हम उसे इन्वर्जन. आई चूज पहले होना चाहिए, आई चूज विच एवर वे ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये इन्वर्जन. क्या आपको समझ में आया? एसोनेंस मैंने कई बार बताया है. एसोनेंस क्या होता है? जो वॉवेल से रिलेटिंग हो. कंसोनेंस जो कॉन्सोनेंट से रिलेटिंग हो, यानी किसी लाइन में वो किसी वॉवेल के वर्ड को बहुत ज्यादा फोकस किया जाए, वो वर्ड डोमिनेटिंग नेचर का है, तो उसे एसोनेंस. अब ओ पे मैंने कॉमा कर रखा है, तो एसोनेंस कहाँ पे है? वे. देखिए यहाँ पे जैसे थॉट्स में ओ वर्ड है, थॉट्स में ओ वर्ड है, और यहाँ नोट में ओ वर्ड है, यहाँ दोज में ओ वर्ड है, यहाँ अदर में ओ वर्ड है, पीपल में ओ वर्ड है. अब देखिए इसी लाइन में ना, इसे प्रोड्यूसिंग में, इसी लाइन में जब वो वॉवेल्स को इतनी बार यूज किया गया और सभी जो है फोकस सभी पर फोकस किया, तो उसे एसोनेंस कहते हैं. एलिट्रेशन आप सभी जानते हैं, द रिपीटिशन ऑफ वर्ड
इज इलिटरेशन। तो इलिटरेशन क्या है, जैसे टीएच वर्ड रिपीट कर रहा है, टीएच वर्ड रिपीट कर रहा है, यहाँ टीएच वर्ड रिपीट कर रहा है, यहाँ भी टीएच वर्ड रिपीट। जब एक ही वर्ड बार बार रिपीट करे, एक ही लेटर बार बार रिपीट करे तो वो इलिटरेशन होता है। ये सब बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम में 110% पूछा जाएगा। अब देखिए इंजॉयमेंट क्या होता है। इस स्टैंजा के लाइन नंबर 4 देखिए, 1 2 3 एंड 4, लाइन नंबर 4 और 5 देखिए, ये 5 है। अब आप देखिए ये पूरी लाइन लिखी गई है और यहाँ पर इंड हो गया है, स्टैंजा की 4th लाइन इंड हो गया विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। Need not to write here full stop mark या comma और semicolon और other punctuation mark। और चौथी पांचवी लाइन भी स्टार्ट हो गई, ना तो यहाँ कोई comma है ना कोई punctuation mark है और फिर भी ये स्टार्ट हो गई, तो इसे हम enjambment कहते हैं, यानी without using any punctuation mark when the first line is end and second line is that is concerned to first line is start it is the enjambment। बिना पंक्चुएशन मार्क के यूज किए स्टार्ट हो गया, ये इंजॉयमेंट है। तो ये हो गया। आइए स्टैंजा नंबर 4 को देखते हैं। स्टैंजा नंबर 4 में कौन सी पोएटिक डिवाइसेस, कौन सी राइमिंग स्कीम है। अच्छा, इसमें और भी पोएटिक डिवाइसेस हैं जो पहले की वीडियो में बता दिए गए, उन्हें हमने रिपीट नहीं किया है। सबसे पहला डिफरेंसेस तो यही बताया, यहाँ पे वेयर से स्टार्ट है जबकि बाकी 3 स्टैंजास में व्हेन से स्टार्ट है। ये कोई पोएटिक, लेकिन राइमिंग स्कीम यहाँ पे स्टार्ट है। राइमिंग स्कीम दिया, जैसे गो दिया है, गो प्लेस से नहीं मिलता है, ठीक है, तो हम ए नंबर लिखते। अगर मिलता तो क्या बी देते, तब भी हम ए लिखते क्योंकि अल्फाबेट में सबसे पहले ए आता है। आपको नहीं दिख रहा हो कि यहाँ राइमिंग स्कीम ए है पहले में। अब दूसरा यहाँ से देखते हैं प्लेस फेस। अब देखिए प्लेस वर्ड और फेस वर्ड दोनों एक दूसरे से मैच कर रहा है, तो राइमिंग स्कीम बी हो जाएगी, इसमें भी राइमिंग स्कीम बी हो जाएगी। और नो, गो नो ना, अब देखिए गो नो, गो नो यानी राइमिंग स्कीम मिल रही है गो और नो से, तो यहाँ भी ए हो जाएगा। यानी सबसे पहले वर्ड देख लेते हैं, जो गो लास्ट में दिया उसकी राइमिंग स्कीम ए है और दूसरे में प्लेस लिखा हुआ है, तो प्लेस वर्ड की राइमिंग स्कीम बी है क्योंकि एक दूसरे से मैच नहीं करता। तीसरे में फेस लिखा है, फेस प्लेस से मिलता है तो बी हो गया, और लास्ट में नो लिखा है तो नो वर्ड लिखा हुआ है तो ये हो गया आपका ए। गो नो राइमिंग स्कीम मिल रही है, स्पेलिंग नहीं मिलाना है, वर्ड की मीनिंग नहीं मिलाना है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन मिलाना है, मैच करता है तो मिल गया। तो अब ये दोनों गो नो मिल रहा है और ये दोनों में, तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए डी बी ए, ये राइमिंग स्कीम हो गई। बहुत आसान तरीका है माय डियर स्टूडेंट्स। इफ यू अनेबल टू नो अबाउट द राइमिंग स्कीम एंड पोएटिक डिवाइसेस, डोंट वरी, आई हैव टू एक्सप्लेन दिस next video that is related to poetic device and rhyme scheme. But before thinking this, you have to see this video, repeat again and again so that you can to know about it. Thank you so much। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना, इसी तरह अपनी पढ़ाई स्टार्ट रखिए। थैंक यू।